So, continuing the discussion where we left in the last class. Sources of energy. Please be serious. In the last class we covered the nuclear reaction. Any doubt in the nuclear reaction? Very soon you will be getting the small notes related to the same. वो मुझे भी तैयार करने हैं, तो आपको उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली पता होना चाहिए था. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फिशन? व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन? न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. सब क्लियर है ना, समझ में आ गया था? कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपसे नोट डाउन भी करवाए थे. So now we'll be starting the chapter right from the beginning. Sources of energy. As the name itself suggests, that the entire objective of analyzing this chapter is to understand the importance of energy and what are the sources through which the energy can be estimated, can be evaluated. Right? तो पहली बात चैप्टर की जो शुरुआत होती है, what is the significance of energy in our life becomes the very first important question. कि एनर्जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके ऊपर नोट्स लिख सकते हो या नहीं? राइट, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी. एनर्जी होती क्या है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. राइट, इवन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, राइट, actually depends upon the energy. The metabolic activity happening in our body makes us alive. Right, if we are talking about all kind of vehicles, locomotive engine also, then the railway engines also, all the car, all those vehicles which are light and heavy vehicles cannot be driven up without the existence of energy. Petrol, diesel, etc. all are acting as a source of energy, including the CNG. Right, all factories, industries, or the industrialization can never be possible without the existence of energy. तो इसके ऊपर 6-7 अच्छे पॉइंट्स बनाकर आंसर लिखना. 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं आपने और अंडरलाइन करना है पॉइंट्स को, जिससे कि एफर्टलेस चेकिंग हो सके. क्योंकि ये क्वेश्चन जितना आसान है उतना डेंजरस भी है. पैराग्राफ लिख दिया ना तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1.5 नंबर मिलेंगे. पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सॉरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी. So the whole objective of understanding this chapter is to find out those sources which provides energy to us, right? So what do you mean by a source of energy? कौन बताएगा source of energy को कैसे define करेंगे? Source of energy is defined as the source through which the energy can be available to us abundantly and conveniently. बहुत ज्यादा अमाउंट में और बड़ी आसानी से निकाले जा सके, ऐसे हर सोर्स को हम क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी. राइट, सोर्स ऑफ एनर्जी गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स. नॉन रिन्यूएबल and renewable source of energy, also regarded to be conventional source of energy, non-conventional source of energy. This is also regarded to be exhaustible source of energy, inexhaustible source of energy, different names given to the same. Right, sources of energy broadly classified into these 2 forms. Non-renewable sources of energy are those sources of energy which cannot be replaced once exhausted. Instantly, जो immediately आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते अगर एक बार खत्म हो जाए तो, उन्हें हम क्या कहते हैं? Renewable, non-renewable source of energy, also regarded to be the conventional source of energy. बड़ा आसान चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है. और नॉन रिन्यूएबल भी जो है, इसके अंदर सबसे पहले आता है फोसाइल फ्यूल्स एंड सेकेंड इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. abundantly available in the form of uranium,
They all are regarded to be the non-renewable source of energy और exhaustible source of energy. Fossil fuels के बारे में हम कार्बन कंपाउंड में हम कर भी चुके हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया दोबारा देखेंगे. Fossil fuels are nothing but they are the prehistoric remains of all the plants, bigger or smaller, along with the animals, right, which are buried under the earth billions and billions of years ago, and thereby the various chemical impact in the presence of high pressure, heat, bacterial, without the existence of any oxygen, convert the entire residue in the form of fossil fuels. Right, fossil fuels in turn broadly classified into three parts: coal, petroleum and natural gas. Right, as they are available to us in limited amount, very limited amount, and hence once over in the near future then cannot be replaced instantly. It takes a large amount of time for the formation of the same. Right, as for the radioactive elements, again the existence of uranium, natural existence of uranium is concerned, is also available in a very limited amount, that too in the form of uranium 238. last class में हमने देखा था, right, लेकिन बहुत in limited amount में, इसलिए that can also be regarded to be the non-renewable source of energy. Or obviously the splitting of the atom, the splitting of the nucleus of the atom obviously leads to the formation of enormous amount of energy, can be used for the advantageous purpose also, disadvantageous purpose also. इसके ऊपर सारे नोट्स आप अपने आप देख सकते हैं. राइट, सो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज एग्जॉस्टेबल, मतलब जो खत्म हो जाए, जो दोबारा इमीडिएटली रिक्रिएट ना हो, और आल्सो रिगार्डेड टू बी द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. हटाऊं इस बात को, इसके मैंने रिटर्न नोट्स आपको बनाकर दे दिए, मैं भी दिखाने वाला हूं. हटाऊं. द नेक्स्ट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Renewable source of energy are those sources of energy which are available continuously and cannot be exhausted. They are inexhaustible, right? The energy that is available from the water, hydro energy, बहुत सारा काम करते हैं. Flowing water creates electricity, right? The energy available from the wind energy, right? सोलार एनर्जी सन से जो आती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, सी से विल बी हैविंग सी वेव्स, देन वी विल बी हैविंग टाइडल एनर्जी, देन ओशन थर्मल एनर्जी. समुद्र के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोफ्यूल्स, एल्कोहल एक्सेट्रा, द एनर्जी दैट इज अवेलेबल फ्रॉम हाइड्रोजन, दे ऑल आर रिगार्डेड टू बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और सातवां जो कि है भी और नहीं भी, वुड. Wood is also a renewable source of energy because cutting the tree can again be recreated, though it takes a time of around 10 to 15 years. But what is one of the most disadvantage of using the wood as a fuel, that the elimination of the same actually leads to the depletion of forests, right? Forest का depletion होता है and thereby that disturbs the eco balance and very harmful for us. That's why wood, though available as a renewable source of energy, but should be regarded as non-renewable source of energy. जैसे यूरेनियम के बारे में बताया था, यूरेनियम इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. आता वो उसी में ही है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में. याद है मैंने बताया था कि नॉन रिन्यूएबल में फोसाइल फ्यूल है और यूरेनियम है, लेकिन यूरेनियम को आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कहेंगे, वो नॉन कन्वेंशनल है, राइट. आराम से अवेलेबल नहीं होता वो, इसलिए हम उसको नॉन कन्वेंशनल कहेंगे. लिखा इसमें इसलिए जाता है क्योंकि वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल है. क्या ये बात क्लियर हो गई? दिस इज अबाउट द ऑल फॉर्म्स ऑफ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर? हटाऊं इसे, लाउडली बोल. जियोथर्मल एनर्जी, यस ऑफ कोर्स.
द एनर्जी दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ, ये सब हम करने वाले हैं अभी, इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। इसके बाद कौन सा है, जियोथर्मल एनर्जी आल्सो, और इसको हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे जियोथर्मल को। क्लियर? सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर विद द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर ऑफ टू टाइप्स, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आप लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल विद देयर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स, राइट। अब ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इनके कुछ साइलेंट फीचर होने चाहिए कि कैसे अवेलेबल हो। बट आई वांट टू से दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ वर्क, accordingly we require the kind of energy. The source of energy should be in a way that it should execute abundance of work for the given unit mass. एक given unit mass के अंदर ज्यादा काम हो सके उसे हम excellent source of energy कहते हैं। तो अब मैं आपको ये थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं इस समय कि what are the silent feature of sources of energy, what should be the silent feature of sources of energy. That the source of energy that is available to us should execute large amount of work for the given mass. It should be easily, conveniently available, can easily be, और जो है safe होनी चाहिए, convenient to transport होनी चाहिए, cheaply available होनी चाहिए, and should not create pollution. और environment effective होनी चाहिए, environment friendly होनी चाहिए। तो next question क्या बना, what are the silent feature of sources of energy? ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में से जो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करनी है उसके अंदर बेस्ट फीचर क्या होने चाहिए, क्या लिख लोगे इसके बारे में, राइट। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डन बाय ए गिवन यूनिट ऑफ मास, राइट। चीपली अवेलेबल, कैन इजिली बी ट्रांसपोर्ट, सेफ होनी चाहिए यूज करते समय, राइट। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। नेक्स्ट, sources of energy is regarded to be fuels. And what do you mean by a fuel? Fuel are those materials which provide large amount of heat energy, right, on combustion, right, जिनको burn करने पर ज्यादा heat produce हो सके, ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, fuels कहते हैं। ये सब आपको already मालूम है। Those substances which undergo combustion and thereby leads to the production of a large amount of heat energy being used for various purposes known as fuels, right. And every fuel is characterized by its calorific value. हर फ्यूल की अपनी एक कैलोरिफिक वैल्यू होती है। So what do you mean by calorific value? It is the amount of heat produced by burning a unit mass of the substance completely, right. एक गिवन मास को, एक यूनिट मास, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम और 1 किलोग्राम को बर्न करने पर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूल। सो एवरी फ्यूल which provides abundance of heat energy to us can easily be analyzed, can easily be identified by looking at its calorific value, right. For example, the calorific value of charcoal is 33 किलोजूल पर ग्राम। चारकोल जो है उसकी 33 किलोजूल पर ग्राम है। दैट मीन्स इफ वी बर्न 1 ग्राम ऑफ चारकोल इट प्रोड्यूस 33 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी। तो समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय दिस, राइट। सो कैलोरिफिक वैल्यू इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली yields this much amount of energy. That means charcoal is one of the excellent fuel. It provides us abundance of heat energy, right, just by burning single 1 gram. Petrol acquires 45 kilojoules per gram. Diesel acquires 50 kilojoules per gram. Wood acquires 17 kilojoules per gram. Hydrogen acquires 150 kilojoules per gram. पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हीट एनर्जी हाइड्रोजन से क्रिएट होती है। That means all the organic compounds which are having the large presence of hydrogen considered to be an excellent fuel as compared to those organic compounds which are having the less presence of hydrogen. LPG is having the large presence of hydrogen, due to which LPG is considered to be an excellent fuel because of its high calorific value.
इज दैट क्लियर? सो यू आर नॉट सपोज टू लर्न द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज, वो तो अगर न्यूमेरिकल आपके वैसे भी सिलेबस में नहीं है, पता जरूर होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय दिस एज ए कैलोरिफिक वैल्यू, तो आप इसका आंसर लिखेंगे दैट 33 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ चारकोल। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. So obviously more amount of heat produced by the given quantity of the substance yields the characteristic feature of the fuel. One of the most important characteristic feature of the fuel that its calorific value should be extremely high. तो सबसे ज्यादा हाई किसकी है? हाइड्रोजन. इसीलिए रॉकेट में क्या यूज होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मिक्सिंग से उसका फ्यूल तैयार होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली, राइट? यहां पर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यील्ड्स द रॉकेट प्रोपल्शन. हटाओ इसे. और उसकी स्पीड कितनी मेंटेन की जाती है? 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड. इतनी स्पीड उसकी अटेन होनी चाहिए, देन ओनली द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट कैन बी पॉसिबल. और इसके लिए कितनी ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, कितना एक्सीलेंट फ्यूल चाहिए? तो हाइड्रोजन इज द बेस्ट वन, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन बम से बड़ा कोई चीज तो है ही नहीं. क्लियर हो गई है? सो नाउ फ्यूल क्या होता है? कैलोरिफिक वैल्यू किसे कहते हैं? एवरी फ्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कैलोरिफिक वैल्यू. अब व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए फ्यूल बिफोर चूजिंग इट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस? ये ऑलमोस्ट सर्टेन क्वेश्चन है. व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ फ्यूल्स? जो फ्यूल आप यूज करने जा रहे हैं उसका सबसे बेहतरीन फीचर क्या क्या होने चाहिए उसमें? पहला फीचर क्या होगा? इट शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू. दूसरा, इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो. मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, राइट, at which the fuel catches fire and starts burning. Ignition temperature समझ में आया क्या है? Is the minimum amount of temperature at which a given fuel catches fire and starts burning is known as ignition temperature. So the fuel which is an excellent one or considered to be an excellent one should neither have a low ignition temperature nor have a very high ignition temperature. अगर low होगा तो दैट वुड बी हाईली अनसेफ फॉर द यूज. अब हम सोडियम को थोड़ा ना एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? और बहुत हाई होगा, 300-400 होगा डिग्री सेल्सियस, तो भी बेकार है वो फ्यूल. इट शुड बी एडिक्वेटली इन बिटवीन 70 to 90 डिग्री सेल्सियस, कंसीडर टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल. सो ए फ्यूल विच इज हैविंग ए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल, राइट? इट शुड बी इम्पार्टेड विद द स्मूथ बर्निंग. बर्निंग उसकी जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, राइट? इट शुड नॉट बर्न इंस्टेंटली एंड इट शुड नॉट टेक ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द बर्निंग, राइट? द स्मूथ बर्निंग एक्चुअली एलिमिनेट्स all, it actually acquires with the least amount of non volatile impurities. स्मूथ बर्निंग में क्या होता है कि जो नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज है, एशेज हो गए, स्मोक हो गया, कार्बन स्मोक, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, वो जब बचेंगे नहीं तो स्मूथ बर्निंग होगी. कार्बन पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स अदरवाइज एटमॉस्फेयर में जाएगा तो क्रिएट्स एयर पॉल्यूशन, राइट? एन एक्सीलेंट फ्यूल शुड not be available with any ashes or smoke, right, left behind after burning or after combustion. ये भी इसका एक फीचर है. तो ऐसे 5-6 पॉइंट्स अच्छे राइटिंग में लिख देना, राइट? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे लिख देना कि उसका मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कितना ही हाई क्यों ना हो टीचर का, वो इजीली रीडेबल हो, राइट? क्योंकि 90% टीचर्स को दोनों हैं, इंक्लूडिंग मी, राइट? तो उसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि सारे फीचर्स को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, अंडरलाइन करना है उसे. राइटिंग अगर अच्छी भी नहीं है तो क्लियर होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए. अब राइटिंग इंप्रूव करने का समय नहीं है, राइट? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आंसर शीट चेक की है. कईयों की आंसर शीट ऐसी है हस्तलिपि लिख रखी हो.
अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर जैसे लिखा हुआ है ना, राइट, ऐसे राइटिंग लिखी हुई है कि जैसे पुरातन काल की राइटिंग जो है, ऐसे में बोर्ड में यू विल गेट 0। स्कूल में इसलिए थे क्योंकि स्कूल के टीचर्स तुम्हें पहचानते थे, इसलिए पता रहता था कि भाई ये आंसर शीट जो है फला स्टूडेंट की है। तो सीसी पैटर्न में तो तुम्हारा रिजल्ट 40% से 60% भी हो जाता था, लेकिन बोर्ड के अंदर तो अगर ऐसी राइटिंग लिख दी यू विल गेट 0, राइट। ये हंसने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट, हंसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकल है। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ फ्यूल्स, ये भी क्लियर है। अब सन इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। क्या होगा आंसर? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। See, the photosynthesis process requires sun's energy, right? So plant absorbs the sunlight and thereby store the sunlight in the form of carbon compounds. Those carbon compounds, the plants, being eaten by us along with the animals also, and hence carbon compounds की जो storage है वो because of the sun's energy है। तो हम लोगों के अंदर भी कौन सी एनर्जी है? sun's energy है। प्लांट्स के अंदर भी कौन सी एनर्जी है? sun's energy है। फोसाइल फ्यूल्स जो बने हैं उसमें भी कौन सी एनर्जी है? ऐसा पूरा बढ़िया सा पैराग्राफ बना के लिख देना, राइट। सो ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जस्टिफाइड और कमेंट ऑन टू इट। क्वालिटी आंसर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जितने आसान है उतने डेंजरस है अगर नंबर फुल लेने हैं तो। ये भी क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं और फ्यूल किसे कहते हैं, फ्यूल के फीचर्स क्या हो सकते हैं। अब हम वास्ट डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा था सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जितनी है उसे हम डिस्कस करेंगे और फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जितनी है उसे डिस्कस करेंगे। विल कंप्लीट द चैप्टर, राइट। सो नॉन रिन्यूएबल के अंदर सबसे पहले आता है फोसाइल फ्यूल्स में कोल, राइट। Fossil fuels are the prehistoric residue or remains of all kind of plants, animals buried under the earth for billions and billions years ago, and all they are actually being covered with the mud. They are basically having the sedimentation of mud and sands, and are not exposed to the oxygen available from the atmosphere, and thereby undergo anaerobic bacterial oxidation without the existence of oxygen. Under extremely high pressure and temperature convert them into the form of coal, petroleum and natural gases. Coal are basically the decomposition of very big plants, trees buried under the earth's surface billions and billions years ago, right? And coal is basically having the presence of carbon, hydrogen, oxygen, some free carbon along with nitrogen and sulfur also, right? ये सब आपको पता होना चाहिए। So the various coal mines are available all across the world. In India they are abundantly available in the state Bihar, where the coal mines are supposed to extract the coal out of it, and the coal is having the extremely high calorific value and is considered to be an excellent fuel. But once the fractional distillation of the same, in fact the destructive distillation of the coal is being achieved, then it converts the entire coal into the form of coke, and coke contains 98% pure carbon, having an extremely high calorific value. And coke is the one which is acting as a reducing agent for the extraction of metal. याद है मेटलर्जी में मैंने बताया था, जिंक सल्फाइड में से कार्बन के साथ हमने किया था ना, कोयले को लिया था, कोयले को मिक्स कर दिया था, राइट। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड. So carbon is nothing but available in the form of coke, which is acting as a reducing agent for the extraction of metal from the respective ores. One of the most important feature of the same. तो कोल का सबसे ज्यादा यूज जो होता है कोक की फॉर्म में होता है.
राइट और ये एक वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल है फॉर प्रोवाइडिंग द हीट एनर्जी एट द डोमेस्टिक लेवल और एट द इंडस्ट्रियल लेवल आल्सो, राइट। ऐसे 3-4 पॉइंट्स लिख देना, मैंने नोट्स तुम्हें बनाकर दिए हुए हैं, उसमें देख लेना आप। क्लियर? कोल के बाद नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा एक तरीके से इसका रिवीजन देख रहे हैं। पेट्रोलियम इज बेसिकली पेट्रा प्लस हीलियम। पेट्रा मीन्स द रॉक ऑयल, राइट, द ऑयल दैट इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ रॉक्स buried under the earth's surface, right? Helium is the formation of the oil with the help of rocks, impervious rocks. Impervious rocks are those rocks which are having no pores into it. They are non-porous, absolutely flat rocks, right? So petroleum is basically a highly crude viscous oil, foul smelling, इसकी smell अच्छी नहीं होती, right? And is basically available in the form of layers amongst the impervious rocks, non-porous rocks, right, and above which there is an existence of petroleum gas, and it is basically the complex mixture of solid, liquid and gaseous hydrocarbon. All forms of the hydrocarbon are available in the petroleum, and once the petroleum, and again बनता किससे है? It is again the prehistoric decomposition of small plants, animals including the human beings etc. leads to the formation of same. Once undergo anaerobic oxidation with the existence of immense amount of pressure, heat etc. leads to the conversion of all these materials into the form of petroleum products, which is a complex mixture of solid, liquid and gases, right? And thereby this petroleum, the highly viscous oil, once undergo fractional distillation, leads to the formation of its byproduct in the form of petrol, in the form of diesel, in the form of kerosene oil, in the form of petroleum gas, right? And above the petroleum there is an existence of natural gas. Natural gas अभी बाद में देखेंगे, लेकिन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मालूम है ना आपको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने 9th में किया था, मैटर एज ए प्योर सब्सटेंस के दौरान। So it's the process which actually eliminates all kind of complexity available within the petroleum and leading to the formation of some useful fuels having the high amount of calorific value as petrol, diesel, kerosene oil, petroleum gas. Petroleum gas is generally called as LPG gas, liquefied petroleum gas. Petroleum gas is again the kind of butane, small amount of ethane, propane available within the same, right? And once it is applied to एक atmospheric pressure के अंदर, it is always been the gaseous form, but once high pressure is employed to the same, then the petroleum gas gets converted into the liquefied petroleum gas, and LPG is being used by us in our home, right? Mainly a butane gas available in the cylinder, has an immense amount of high calorific value, won't create any kind of smoke, and is environmentally friendly also. It doesn't create any kind of air pollution. ये तो LPG के एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? It acts as a bomb. It has immense amount of high calorific value and can explode the metal also here, that is the cylinder itself, and hence be used with proper precautions. Clear? तो ये तो डिसएडवांटेज हो गए LPG के, समझ में आ गया ना? तो दिस इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम, कर लोगे या नहीं? ठीक है भाई। उसके बाद आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज मीथेन, 95% मीथेन and rest is the other gas in the form of ethane, propane etc. Is basically the natural gas once compressed leads to the formation of CNG, compressed natural gas, and obviously you know the advantage of the same, but it also acquires an immense amount of disadvantage. There are many European countries which have actually banned the CNG because it leads to the formation of a cancer. It is one of the most important initiative of the cancer.
You will be having the prolonged use of CNG at the CNG station पे ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए. But we Indians are generally having the habit of purchasing the thing which is available at low cost. और CNG गैस की लीकेज जो है इस आप चाहे गूगल पे देख लेना, बहुत सारी कंट्रीज ने उसे बैन ही किया हुआ है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैंसर, ह्यूमन बॉडी कैंसर. तो CNG का अपना एडवांटेज है. हाँ, ये एयर पॉल्यूटेड नहीं है, पॉल्यूशन इसके थ्रू नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है. डिसएडवांटेज इसका ये भी, अगर ये भी एक्सप्लोड हो गया तो इट कैन क्रिएट इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट आल्सो. एक बात आपने भेजा था शायद वीडियो, ग्रुप में भेजा था, वो बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो था, आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो जरूर देखना, ग्रुप में है हमारे में, कि किसी भी कीमत पर पेट्रोल पंप पर आपका मोबाइल काम नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर. इनफैक्ट बेस्ट तो ये है, अगर पेट्रोल भरवाना है और पूरी टंकी फुल करवानी है तो उसे बंद ही कर दो उस समय, वहां कोई हीरोइज्म नहीं चलेगा. और उसी दौरान फोन आ रहे हैं, उसी दौरान आप बात कर रहे हो, एक नहीं आज 100 केस हो चुके हैं ऐसे, ब्लास्ट हो जाता है इमीडिएटली, और पूरे बम की तरह ब्लास्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है उसके अंदर, इतनी एनर्जाइज्ड वेव है वो जिसकी कोई सीमा नहीं, और पेट्रोल भी इन्फ्लामेबल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से इमीडिएटली दैट एक्सप्लोड्स. पूरी कार कैसे एक्सप्लोड हुई है उस पर्टिकुलर वीडियो में, वो बनाई हुई वीडियो नहीं है, वो सच्चाई है, उसको देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए. राइट, किल्ड इंस्टेंटली ऑल द पर्सन सिटिंग इनटू द सेम. इसे किसी भी कीमत पर ये चीजें यूज नहीं होनी चाहिए. CNG के साथ भी एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए. CNG के व्हीकल्स अगर कभी किसी भी कारण से लीक कर जाते हैं, पता भी नहीं लगता, विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरी गाड़ी बर्न हो जाती है. इसे बेस्ट है पेट्रोल ही या डीजल. ज्यादा जाना है तो डीजल, कम जाना है तो पेट्रोल सही है. लेकिन CNG का एडवांटेज है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट कैन क्रिएट द कैंसर टू अस, तो बेटर टू मूव अवे फ्रॉम दैट. ये आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर कि इसका डिसएडवांटेज क्या है. इट गिव्स एन एक्सीलेंट इंप्रेशन ऑन टू द एग्जामिनर. खैर, ये क्लियर हो गया. तो इस तरीके से वी हैव कवर्ड नेचुरल गैस. यूरेनियम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने न्यूक्लियर रिएक्शन देखा ही था. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहला डिसएडवांटेज दैट द कंबशन ऑफ द सेम लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑल एयर पॉल्यूटेंट्स. पेट्रोल डीजल अपने इंजन के अंदर, इंटरनल कंबशन इंजन में जब वो बर्न होते हैं तो बाहर जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. इसीलिए तो CNG का यूज बताया गया था कि इनका यूज कम किया जाए. दूसरा, अगर कितना ही बेहतरीन आप उसको यूज कर रहे हो तो दैट कन्वर्ट्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द फॉर्म इंजन. कैटालाइटिक कन्वर्टर भी यूज कर लिया, अगर हमने एक एक्सीलेंट इंजन भी यूज कर लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेरी हार्मफुल टू अस. ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी से क्रिएट होता है, गर्मी उसी से बढ़ती है. राइट, और स्मोक बहुत क्रिएट होता है इससे. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में आ सकते हैं. ये इसके 3 सबसे मेजर डिसएडवांटेज हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स? लिख लोगे 3-4 पॉइंट्स इसके. राइट, अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बिना इसके तो गुजारा भी नहीं है. कंट्रोल कर सकते हैं हम. कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोलिंग ऑफ द डिसएडवांटेज, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन बी पॉसिबल. एंड व्हाट आर द कंट्रोलिंग मेजर्स? पहला ये है, द व्हीकल शुड बी इंपार्टेड विद कैटालाइटिक कन्वर्टर. व्हीकल्स के इंटरनल कंबशन इंजन के दौरान एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जहां कैटालाइटिक इन्वर्टर, आप कन्वर्टर जो है आप वहां लगा सको. कैटालाइटिक कन्वर्टर एक्चुअली कन्वर्ट्स द हार्मफुल गैसेस इनटू द हार्मलेस गैसेस. राइट, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने में वो मदद करता है. दूसरा, जितनी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैं उसमें चिमनी लगी होती है, ऑर्गेनिक फॉसिल फ्यूल्स तो वहां भी यूज होते हैं.
पेट्रोल डीजल कहाँ यूज नहीं होता? इरिगेशन ऑफ प्लॉट्स के अंदर होता है। पेट्रोल डीजल जो है जितने भी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज है उनको ड्राइव करने में यूज होता है, तो ऑब्वियसली उसका स्मोक निकलता है, चिमनी के थ्रू बाहर जाता है, राइट। तो एवरी चिमनी शुड बी एक्वायर्ड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हर चिमनी के टॉप लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। एंड व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर डज, द स्मोक दैट सीजेस आउट ऑफ द चिमनी gets attracted by the electrostatic precipitators and it actually absorbs the all unburnt carbon particles into the same, and thereby leaving the gas with the least amount of the unburnt carbon particles and prevent the air pollution in that way, right. There are many industries which are also, the third one, which are using the scrubbers. Scrubber is a very big container into which all the gases which are being evolved after the combustion of the fuel in the form of sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, etc. All the gases are actually put into the scrubber, and that particular scrubber which is having harmful gases is now exposed to the spray of high stream of water and then allowed to go out of chimney. तो उससे क्या होगा, द वाटर स्ट्राइक्स द हार्मफुल गैसेस एंड ट्राई टू एब्जॉर्ब, ट्राई टू एलिमिनेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ sulfur dioxide, sulfur trioxide into the scrubber itself, leaving behind the minimum amount of these harmful gases which may enter into the space. ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने क्या देखा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फोसाइल फ्यूल्स, और हमने क्या कवर किया है, हाउ टू कंट्रोल इट। ये सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर होने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमेंट ऑन टू इट। इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द वेरियस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज दैट आर मेंट टू मेक new products with the help of raw materials are available in abundance leads to the formation of industrialization. कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है, कौन बताएगा? वो तो एक अलग बात है। सबसे बड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इट कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्स ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेफिनेटली uplifts our life, it has made our life at a extremely high convenient level. आज जितनी भी लेटेस्ट डिस्कवरी सामने आ रही हैं वो हमारी लाइफ को इजी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, एनर्जी। एंड एनर्जी का सोर्स क्या है? मैक्सिमम फोसाइल फ्यूल्स। फोसाइल फ्यूल्स ज्यादा से ज्यादा खत्म होते जा रहे हैं, और बाकी जो आपने बताया वो तो सेकेंडरी मेजर है। उसका प्राइमरी मेजर क्या है कि द इंडस्ट्रियलाइजेशन, द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी which in turn vanishes the fossil fuels, and that forces us to use the alternative source of energy, non-conventional source of energy, that is a renewable source of energy, right। अब हम उसकी तरफ जाएंगे, क्लियर। तो अभी हमने कोक के बारे में देखा था। कोक इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट थर्मल पावर प्लांट। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट।
This is furnace. Furnace containing coke. This is a boiler containing the known quantity of water into it, and thereby the heat energy supplied to it converts the water into the form of steam. Spent steam. This is turbine. This is shaft. This is well known fact, generator. Right? One is available in the Badarpur near Faridabad, working on the same state. Thermal power plant, thermal electric power plant. Right, the known quantity of the water is exposed to the extremely high amount of energy. Obviously, abundance of coke is required, and that steam, high energized steam carrying immense amount of kinetic energy, is now allowed to enter into the turbine. Right, and high charged steam strikes the blades of the turbine and thereby rotates the turbine, which in turn rotates the shaft attached to it. And thereby the shaft, once enter into the generator, the shaft in turn is having the presence of electromagnet or the rectangular coil moving under the influence of uniform magnetic field, right, or the electromagnet is moving under the influence of the fixed circular coils. Relative motion होना चाहिए ना, leads to the formation of what? Electricity. यहाँ से translocate कर देंगे, right? Very important question. और ये 3 नंबर का 2 नंबर तो इस डायग्राम के ही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ड्स में या 20 to 30 वर्ड्स में आंसर खत्म. The whole objective of using it to undergo the combustion of coke, which produces steam, strikes the blade of the turbine as shown in the above figure, rotates the turbine, in turn rotates the shaft, right, and thereby the shaft which enters into the generator held responsible to create electricity. खत्म आंसर, इसका आगे कुछ नहीं लिखना. This is one of the use, this is one of the important use of the fossil fuel coke, which is basically obtained from the destructive distillation of coal. बताया था ना मैंने, 98% प्योर कार्बन है इसके अंदर. कोयले की बात हो रही है, राइट? कुछ पूछना है इसमें? हटा दूं? तो इस तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म. अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह लो या अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कह लो, वो है कि जो बार बार ऑब्टेन हो सके, जिसके लिए किसी एटम या न्यूक्लियाई को खत्म करने की जरूरत ना हो, राइट, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन की कोई जरूरत ना हो. ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? राइट. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोइंग वाटर, लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. Right? Hydro means water, electricity being produced by it. ये जनरेटर, वही ठीक है ना.
ये टरबाइन, ये slanted edge, this is dam, construction of dam at a considerable height from the surface, right? A very large amount of water is stored at a considerable height in the form of the structure known as a dam, right? Abundance of water is accumulated over here. Once allowed to move with the help of the slanted edge, thereby converts immense amount of potential energy. इतने बड़े डैम की इतनी ऊंचाई पर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. इज द एनर्जी बाय virtue of its position. More the height, more the weight, more be the potential energy mgh. And according to the law of conservation of energy, this water once allowed to seizes out through this slanted edge, the gradual conversion of potential into kinetic change takes place. Is that clear? So whatever be the amount of potential energy available over here gets converted into the form of kinetic energy once it is about to touch the blades of the turbine, right? So high energized steam of the water once strikes the blade rotates the turbine at an extremely high speed. Why at an extremely high speed? Because the efficiency of the generator actually depends upon the number of rotation acquired by the shaft. जितनी तेजी से शाफ्ट घूमेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी. ये हमने जनरेटर के केस में देखा हुआ था, राइट? मोर द स्पीड, दैट मीन्स अगर रेक्टेंगुलर कॉइल इसके साथ अटैच्ड है, द रोटेशनल मोशन एक्वायर्ड बाय द रेक्टेंगुलर कॉइल if acquired with extremely high speed leads to the formation of large amount of electricity, because both the arms cut the magnetic field lines, right, in a very short period of time. नॉर्थ और साउथ में जो नियर बाई रेक्टेंगुलर आर्म्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से कट करेंगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, राइट? द होल पर्पस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच ए इमेंस अमाउंट ऑफ हाई एनर्जाइज्ड वाटर in the form of potential energy so as to convert it into the form of kinetic energy is just to enhance the speed of this turbine, which in turn enhances the speed of the shaft attached to it and thereby increases the speed of the rectangular coil or the electromagnet attached to it, leading to the development of large amount of electricity. Clear? This is how the dam being constructed, and such kind of structure leads to the formation of hydroelectric power station. और जो ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, most of the hydroelectric power stations are available along the pathway to Badrinath also और केदारनाथ also. और वो जो हादसा हुआ था 2013 में, it is because of the imbalance of the ecosystem. डैम कंस्ट्रक्ट करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इको बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, राइट? फ्लोरा एंड फोना, आप मालूम है ना उसके बारे में आपको? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स. डैम कंस्ट्रक्ट हुआ तो यानी कि पानी के अंदर ही आकर वो डूब गए सारे. लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोरा बीइंग लेफ्ट एंड देयर बाई लीड्स टू द अगेन इम्बैलेंस टू द नेचर इटसेल्फ. देयर इज अ लीस्ट अमाउंट ऑफ द फिशेज अवेलेबल इन दैट केस. The fishes will not get the requisite amount of oxygen, and there is every possibility of having the consistent decay of the same. Vegetative propagation within the sea water जो कि एरोबिक ऑक्सीडेशन से होता था, यहाँ पर एनएरोबिक ऑक्सीडेशन के कारण होगा क्योंकि पानी ठहरा हुआ है, and that leads to the impact of the high formation of carbon dioxide, facilitate the greenhouse effect. Is that clear? विलेजेस के विलेजेस जो हैं खत्म हो जाते थे, ह्यूमन बींग्स को भी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती थी, एक जगह से दूसरी जगह जा के रहना होता था. दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग सच काइंड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. तो डिसएडवांटेज के बारे में भी आपको क्वेश्चन आता है, क्लियर है? और एडवांटेज क्या होगा इसका? इसका एडवांटेज है कि फ्लड्स को रोक देता है ये, जबकि फ्लड्स रुकने नहीं चाहिए. क्यों रुकने नहीं चाहिए, कौन बताएगा? Because the floods also carry the important essential minerals available within the soil to translocate from one position to another position.
if there is no existence of flood for a prolonged period of time, then the soil would be acquired with the deficiency of important nutrients, and which in turn led to the low quality vegetative production. Right? तो इसके बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या है इसके, और एडवांटेज ये है कि फ्लड को रोकता है ये, राइट। दूसरा एडवांटेज ये है कि इससे कोई एयर पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके से हमने हाइड्रो एनर्जी का यूज किया यहाँ। दिस इज व्हाट द यूज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर। अब दूसरा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के यूज से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है। Small generator is available. This is a tower with adequate height. Blades are attached to it. Circular turbine, shaft, generator. Right? So high energized wind once strikes over here, rotates the blade, does what you already know. Right? In India, it is specifically seen in large abundance in Kanyakumari. राइट बिल्कुल लोअर पार्ट ऑफ आवर कंट्री में कन्याकुमारी के अंदर द यूज ऑफ विंड पावर स्टेशंस आर देयर वेयर वी हैव द हाई मोर देन 5000 such kind of structures are available which uses the wind energy for the creation of electricity. In fact, our India is capable of producing more than 45,000 megawatt of electricity with the help of wind energy. But right now we are just having the production of this much with the help of wind energy. इतनी हम कर सकते हैं लेकिन इतनी कर पा रहे हैं। आप सोचो पानी का यूज नहीं होगा, डैम नहीं बनेंगे, अगर ऐसा किया जाए तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है, राइट? इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, इतना स्पेस हमारे पास है जहां पर हम आसानी से इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जहां पर तेज हवा चलती है, जहां पर द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द एयर इज एक्सट्रीमली हाई, वहां पर ऐसी कंस्ट्रक्शन आराम से पॉसिबल, राइट? और जर्मनी में और डेनमार्क में 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बीइंग यूज्ड ओवर देयर इज विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी ओनली, राइट? विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अगली क्लास में हम सोलार एनर्जी को देखेंगे एंड देन वी विल स्विच ऑन टू एनर्जी फ्रॉम द ओशन, उसको कवर करेंगे, विल कंप्लीट द चैप्टर। ठीक है, ये हम परसों करेंगे सेम टाइम 4:30। हम मैथ्स के लिए मिलेंगे और मैथ्स के बाद हम 6 बजे इसी चैप्टर के लिए मिलेंगे। बायो की क्लास 5 बजे से होती थी ना बस, तो 6 बजे याद रहेगा साइंस के स्टूडेंट्स। हर्षित कहाँ है? ठीक है, 6 बजे आ जाओगे ना? ओके बेटा, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अभी रिंकू आपको कुछ नोट्स दे देगा। 1 मिनट देखो, 1 मिनट बैठ जाओ। तुमने जेरॉक्स कर ली? राइट, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने ये लिख दिया है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे ध्यान में होने चाहिए, राइट? ये साइलेंट फीचर ऑफ फ्यूल। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फ्यूल ए है, एक फ्यूल बी है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55, इसकी है 50, इसका इग्निशन टेम्परेचर 20, उसका 80, कौन सा बेटर है? बी। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर एडिक्वेट है, उसका कम है, और दूसरा इससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। क्लियर है? तो
उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इसमें लिख दिए हैं, नेचुरल गैस और थर्मल पावर प्लांट, राइट। गुड नाइट बेटा, मूविंग टू नेक्स्ट क्लास।